Good morning, everyone. See, today we will start next lecture, that is types of triangle. Today we will study about types of triangle. Types of triangle. Okay, so see here, types of triangle based on length of the sides. So many types of triangle are there: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. Okay, acute. Now after that we will study about angles, that is acute angle, obtuse angle, right angle. So see, types of triangle. First of all, you have to note down equilateral triangle. All the three sides are equal in equilateral triangle. Means three of the sides are equal in equilateral triangle. Now see, isosceles triangle. In isosceles triangle, any two sides are equal. Okay, then in third, scalene triangle. In scalene triangle, no two sides are equal. Means any of the side is not equal in the scalene triangle. In isosceles triangle, any two sides are equal, and in equilateral triangle, all the three sides are equal. Now see, on the basis of angle we will study about. See, acute angle triangle. Acute angle triangle. In this, all the three angles are acute angles. Acute angles means what? Less than 90 degree or less than 90 degree. Okay, now right angle triangle. Right angled triangle. One angle is of 90 degree. Any one angle is of 90 degree, it is right angle triangle. Obtuse angle. Obtuse angle triangle. In this, one angle is obtuse. Now obtuse angle means what? Or one angle is greater than 90 degree. This both have the same meaning, but here it is given one angle is obtuse angle or one angle is greater than 90 degree. If one angle is given greater than 90 degree, then it is your obtuse angle. If one angle is given 90 degree, it is a right angle. If all the three angles are given less than 90 degree, then it is your acute angle. Okay. Now see, one more it is given here, equiangular triangle. Equiangular triangle. In this, all the angles are of the same. Means when the three angles of a triangle are equal, all the three angles are equal. All the three angles are equal here. Okay. These all things you have to note down in your notebook. Okay. So see now, exercise 12B. 12B. See your first question. Classify the following triangles as scalene, isosceles or equilateral triangle. Equilateral according to the length of their sides. If the length of their side is given here, see question number first and question number second.
क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर साइड्स। सी सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको एंगल गिवन है, अगर 90 डिग्री से लेस है तो वो एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगा। सी वाले में अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा दे रखा है 150 डिग्री का, और तीनों एंगल अगर सेम है तो भी, अगर तो तीनों एंगल्स अगर सेम है तो या तो आप उसमें लिख सकते हो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल या फिर एक्यूट एंगल, बोथ आर सेम ईयर। अब अगर 90 डिग्री से लेस है तो यू कैन राइट हियर एक्यूट एंगल। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क एंड दिस बोथ क्वेश्चंस यू कैन डू इन योर बुक इटसेल्फ, ओके, नो नीड टू राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी। And question number 3, given below is a set of triangle from the given list of attributes, write 2 appropriate attributes of for each of the triangle। See, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रहा, थर्ड वाले में फर्स्ट वाला ऑलरेडी इट इज गिवन हियर। देखो ये 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये कौन सा एंगल हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल, ओके। अब इसमें देखो तीनों साइड्स डिफरेंट है, मीन्स 3 ऑफ द साइड्स आर डिफरेंट, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन स्केल एंड ट्राइंगल, नो 2 साइड्स आर इक्वल, मीन्स नो साइड्स आर सिमिलर, देन इट इज राइट एंगल्ड स्केल एंड ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल स्केल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें देखो 119 डिग्री दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें 190 मीन्स इट इज अबव 90 डिग्री, मीन्स द एंगल विच इज अबव 90 डिग्री इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो हियर इट इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड साइड्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज ऑल्सो स्केलिन हियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी वाले में देखो, ये देखो 3 ऑफ 1 एंगल इज 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, ओके। 3 ऑफ द एंगल आर सिमिलर हियर, और ये यहाँ पे दे रखा है 5, ये भी 5, ये भी 5। अब जिसमें साइड से भी सिमिलर हो और एंगल्स भी सिमिलर हो तो क्या होगा यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड अगर एंगल्स इक्वल है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल and equilateral triangle, okay। Now see question number 4, similar है question number D, E and F, that is your homework, and question number 4 is also your homework, give an example of each category from the given figure। We will solve now question number 5। Use the given magnitudes of the angles to classify following triangles as scalene, isosceles और equilateral। So first वाला क्वेश्चन है आपका, ये ट्राइंगल आपका बना हुआ है, ठीक है, A B C, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज योर 70 डिग्री। नाउ 3 ऑफ द एंगल्स आर डिफरेंट हियर, सो दिस इज योर स्केलिन ट्राइंगल, ओके। नाउ बी वाले में देखो ये 50 डिग्री दे रखा है, ये वाला 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो 50 50 100 और ये कितना हो गया 80 डिग्री, सो ए बी सी, और ये वाला हो गया योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। सी वाले में देखो A B C, names are not given here but you can put here, this is your 60, this is also your 60, तो 60 डिग्री 60 सभी एंगल्स अगर इक्वल है तो वो किस में होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, बिकॉज ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ D, this is your 40 degree, this is your 70 degree, okay, and this angle you have to find। अब देखो
अब दोनों एंगल्स अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब रिमेनिंग वन एंगल इज रिमेनिंग। सी लिसन, आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंगल है, ठीक है। सी अब 3 एंगल्स का सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब आपको 2 एंगल्स का सम दे रखा है और थर्ड एंगल आपको निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए आपको 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे बी आपको दे रखा है 60 डिग्री, सी आपको फाइंड करना है 180 डिग्री यहाँ दे रखा है। तो एंगल सी इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 130, तो एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल सी आपका कितना आ रहा है, 50 डिग्री। अब तीनों एंगल इसमें, तो एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो तीनों एंगल इसमें अलग अलग है, तो ऑल एंगल्स आर डिफरेंट इन स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें देखो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 50 प्लस 50 मीन्स एंगल ए आपको फाइंड करना है, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। नाउ सी एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल ए आपका कितना आ रहा है, 80 डिग्री। तो 2 एंगल्स आर सेम इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सी एंगल ए आपको फाइंड करना है, 60 60 ये दोनों दे रखे, ठीक है, ये 180 हो गया। तो एंगल ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब तीनों एंगल इसमें सेम आ गए, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें 80 डिग्री हो गया। अब तीनों एंगल सेम है, मीन्स दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ आप कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ए आपको 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल ए कितना दे रखा है आपको 40, बी कितना दे रखा है 70, सी आपको फाइंड करना है और बी आप फाइंड करना है, आप सी आप लिख दो यहाँ पे 70 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ये। अब एंगल बी इज इक्वल 180 माइनस 110, तो एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये आपका एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री है। अब इसमें 2 एंगल सेम है और एक एंगल अलग है, तो दिस इज योर isosceles triangle. Okay, like this you have to solve. Now see next D तक हमने कर लिया है, E वाला करेंगे अब। E this is your 80, this is your 60। अब ये वाला आपको फाइंड करना है, तो इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो, इसको C मान लो। नाउ लिसन यार, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A 60 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, दिस इज योर एंगल C, यू हैव टू फाइंड 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ सी एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दिस इज योर 40 डिग्री। अब देखो तीनों एंगल्स इसमें एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स 3 ऑफ द एंगल्स आर डिफरेंट हियर, सो दिस इज योर स्केलेन ट्रायंगल। नाउ सी F, दिस इज योर 75 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, A B C। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A 75 है, B 30 है और एंगल C यू हैव टू फाइंड, ये हो गया 180 डिग्री, 105, एंगल C इज इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो एंगल C इज इक्वल टू 75, तो एंगल C इज इक्वल टू 75, इट मीन्स 2 एंगल्स आर सिमिलर हियर एंड 1 इज डिफरेंट, इट मीन्स दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, in this way you have to solve this. Now see question number 6,
क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखो यहाँ पे रेशियो में आपको एंगल्स दे रखे हैं, तो जब भी आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में, जब भी आपको कोई भी रेशियो का क्वेश्चन है, इट मीन्स यू हैव टू पुट नंबर के पीछे आपको x लगाना, x लगाकर ही आपको सॉल्व करना है। तो सी हियर एंगल A इज इक्वल टू 1, एंगल B इज इक्वल टू 2, एंगल C इज इक्वल टू 3। अब तीनों रेशियो में दे रखे हैं तो x लगा दो सबके पीछे, ठीक है। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब सबको प्लस कर दो, 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 6x 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, डिवाइड बाई 6, 6 3 जार 18, 0, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आई है, तो अब एंगल A क्या आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। अब एंगल B क्या दिया हुआ था, 2x, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो गया आपका 60 डिग्री। एंगल C क्या गिवन है आपके पास, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 दैट इज 90 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, ये हो गया R P S Q, ओके। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, एंड दिस इज योर 35 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड is RS perpendicular to PQ. RS is perpendicular to PQ. Angle Q is given to you, that is 35 degree. Find the magnitude of angle PRS. Angle PRS आपको find करना है, angle PRS. This is your 90 degree. Okay. Now see angle PRSQ. Okay. 3 angles are given here. Angle RPQ, RSQ and RPQ. ठीक है। नाउ सी हियर ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको आर एस गिवन, आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो ये दोनों एंगल सिमिलर है, ये एंगल और ये एंगल बोथ आर सिमिलर। नाउ सी एंगल क्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू 35 डिग्री, ठीक है। नाउ सी दिस एंगल इज एंगल एस, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये इधर का एंगल एस निकालना है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। नाउ सी फॉर दिस एंगल इज गिवन ऑन योर स्ट्रेट लाइन, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल, अब हम एंगल R निकालेंगे। एंगल R इज इक्वल टू 90 प्लस 35 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों का 8 कर लो, 5, 125, 5, 55 डिग्री। तो एंगल R आ गया आपका 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया आपका 55 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये 55 हो गया तो ये वाला भी 55 ही होगा, ठीक है। अब देखो एंगल R आपको मिल गया, ये वाला आपको मिल गया ना, आपको एंगल P निकालना है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब दो एंगल आपको दे रखे हैं, एंगल S 55 डिग्री है, एंगल R आपके पास है 90, सॉरी एंगल S आपके पास 90 डिग्री है, दिस इज योर 55 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज ऑल्सो योर 35 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल PRS। अब PRS कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। QRS कितना आ रहा है, QRS दिस इज ऑल्सो योर 35 डिग्री। नाउ सी एंगल RPS,
RPS, दिस इज योर 35 डिग्री, ठीक है। एंगल TRS इज इक्वल टू PRS, कितना दे रखा है 55 डिग्री। एंगल QRS, एंगल QRS कितना है QRS, दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री। नाउ एंगल RPS is equal to 100, sorry, this is your 35 degree. So these are the magnitudes of this triangle. Okay, so we have completed this exercise also. Okay, so complete the remaining questions of this exercise. Okay, thank you.